अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। C produces a bottle of Draksharishta at a cost of rupees 10. He appointed R of Chennai, their agent, on the terms that the agent would get commission at the rate of 10% on invoice price of goods sold and also an extra commission at 25% on any excess amount realized above invoice price. मतलब आर जो है वो कमीशन लेगा जितना गुड्स सेल करेगा ऑन इनवॉइस प्राइस पे 10% और इनवॉइस के ऊपर जितना प्राइस रहेगा उसके ऊपर 25%। On 1/9/2024, she sent 50 boxes of Draksharishta, each box containing 50 bottles, at invoice price showing a profit of 33.33% on such invoice price. He spent rupees 3,000 for freight and rupees 2,000 for insurance. 5 boxes were completely destroyed in transit and insurance claim of rupees 2,300 was realized from insurance company. The agent took delivery of the remaining goods and spent rupees 2,000 for duty and rupees 1,000 for freight to carry the goods to the rented godown. He also accepted a bills of exchange for rupees 20,000 payable after 4 months in favor of the consignor as advance. At the end of the year 31st 12 2024, the agent reported that 40 boxes were sold at rupees 18 per bottle and 1 box goods were lost due to bad packaging. This would be treated as normal loss. The agent remitted a bank draft for the net amount after deducting his commission, advance money, go down rent 800 and selling expenses 200. On 1/1/2025, she discounted the bill of rupees 20,000 for rupees 19,800. On 4/1/2025, bank informed that the bill was dishonored. She demanded the entire amount along with an additional amount of rupees 200 as interest. The Chennai agent sent a bank draft for the amount on 15/1/2025. You are required to prepare the following in the books of C: consignment account or R account. पहले सम को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। यहां पे सी है कंसाइनर और आर ऑफ चेन्नई ये हो गया कंसाइनी। तो शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सी कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट। इन्होंने बताया था कि द्राक्षारिष्टा का बॉटल जो है उसका कॉस्ट है ₹10 और इस जगह पे यहां पे बता रहा है कि प्रॉफिट जो होगा मतलब लोडिंग जो होगा 33.33% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो वर्किंग में चलते हैं। पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ₹10। अब यहां पे आते हैं। उन्होंने बताया था प्रॉफिट जो होगा 33 1/3%, 33.33% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस को अगर हम 1 मानते हैं तो प्रॉफिट होगा 33.33% मतलब 1/3 ऑफ 1 दैट इज 1/3। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अच्छा, when CP is 2/3 then
profit is one third. When CP is 1, then profit is equal to 1 by 3 by 2 by 3, मतलब 1 by 2। तो ये मैंने इसलिए किया कि मुझे सीपी के ऊपर देखना था प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो सीपी के ऊपर प्रॉफिट है हाफ, मतलब 10 का हाफ 5 रुपीज। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 रुपीज। तो ये था लोडिंग निकालने का तरीका। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बताया 50 बॉक्सेस ऑफ द्राक्षारिष्ट, ईच बॉक्स कंटेनिंग 50 बॉटल, मतलब एक बॉक्स में 50 बोतल है। टोटल 50 बॉक्स सेंड किया गया इनवॉइस प्राइस पे। तो ठीक है, हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं। अच्छा, डेट मेंशन है क्या, 1/9/2024। तो लिखेंगे 1/9/2024 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 50 बॉक्स है, एक बॉक्स में 50 बोतल है, और प्राइस है इनवॉइस प्राइस 15 रुपीज। $37,500 यहां पे लिखेंगे 37,500। Similarly, 1/9/2024 by goods sent on consignment account। यहाँ पे 50 बॉक्स इंटू 50 बॉटल्स इंटू लोडिंग है ₹5, 12,500 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। He spent 3,000 for freight and 2,000 for insurance। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पहले है फ्रेट 3,000, 2,000 इंश्योरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेट 3,000 और इंश्योरेंस 2,000। 3 और 2 5,000 आउटर कॉलम में भेज देते हैं। आगे आगे बताया जाता है 5 बॉक्सेस वर कंप्लीटली डैमेज्ड ड्यूरिंग completely destroyed in transit and insurance claim of 2300 was realized from the insurance company। 5 बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसका वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, calculations for abnormal loss, calculations for abnormal loss। अच्छा,
यहां पे लिखेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ 5 बॉक्सेस। अब हम लोग जानते हैं 5 बॉक्स मतलब 5 × 50 बॉटल्स इंटू 15 रुपीज इनवॉइस प्राइस है। 250 × 15 मतलब 3750 रुपया। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का खर्चा आया था 5000 रुपया, ₹5000। वो था 50 बॉक्स के लिए, 50 बॉक्सेस। हमारा यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस हो रहा है 5 बॉक्सेस, मतलब 500 रुपया। टोटल 4250 एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस में 4250 रुपया। तो यहाँ पे आ जाते हैं टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। लोडिंग हटाएंगे, 5 बॉक्स, एक एक बॉक्स में 50 बोतल इंटू ₹5, 1250 रुपया। अच्छा, अब हम लोग नीचे एबनॉर्मल लॉस की ओर चलते हैं। ये रहा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। टू कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस था यहाँ पे 4250 का। बाय कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग था 1250। बाय इंश्योरेंस क्लेम 2300 रियलाइज्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो बाय बैंक अकाउंट 2300 रुपया इंश्योरेंस क्लेम रियलाइज होता है। बाकी का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट एबनॉर्मल लॉस, 700 रुपया का नेट एबनॉर्मल लॉस आ जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन खत्म है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, द एजेंट took delivery of the remaining goods and spent ₹2000 for duty and 1000 for freight to carry the goods to the rented godown। ड्यूटी और फ्रेट
एजेंट का नाम क्या था? एजेंट का नाम था आर। टू आर अकाउंट ड्यूटी, ड्यूटी उसका था 2000 और 1000 रुपये का फ्रेट। ड्यूटी है 2000 और फ्रेट है 1000, 3000, और ये पूरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? He also accepted a bill of exchange for 20,000 payable after 4 months in favor of the consignor as advance। तो आर का एक अकाउंट खोलना जरूरी हो जाता है। नीचे चलते हैं, ये रहा आर अकाउंट। आर अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट, ये हम लोग ने जो खर्चा किया 3000 का, इसको पहले नोट डाउन करवाते हैं। फिर उन्होंने एक एडवांस दिया था 20,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000, ये एडवांस लिख देते हैं। आगे क्या होता है? At the end of the year, 31st December 2024, the agent reported that 40 boxes were sold at rupees 18 per bottle। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31st दिसंबर 2024 जो कि ईयर एंड है, बाय आर अकाउंट। उसने बताया 40 बॉक्सेस सेल हुआ, एक बॉक्स में 50 बोतल एट रुपीज 18 पर बॉटल, मतलब 36,000। ठीक है, तो आर अकाउंट में चलिए पोस्टिंग कर देते हैं 31st दिसंबर 2024 टू कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट 36,000 का सेल प्रोसीड्स। अच्छा, अब आगे क्या होता है? आगे बताया जा रहा है 1 box goods were lost due to bad packing, this would be treated as नॉर्मल लॉस। तो इसे नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल लॉस जब भी होता है हम लोग उसको अनसोल्ड स्टॉक में उसका ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। अब आते हैं द एजेंट रेमिटेड ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, एडवांस मनी, गोडाउन रेंट 800, सेलिंग एक्सपेंसेस 200। तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा टू आर अकाउंट, गोडाउन रेंट है 800, सेलिंग एक्सपेंसेस 200। तो लिखेंगे गोडाउन रेंट 800 और सेलिंग एक्सपेंसेस 200। अब कमीशन भी यहां पे लिख देते हैं, इन्होंने बताया था कमीशन का जो इन्होंने बताया था कि 10% इनवॉइस प्राइस पे कमीशन मिलेगा और 25% इन एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड अबव द इनवॉइस प्राइस। तो ठीक है,
जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग का जो गुड्स है उसका इनवॉइस प्राइस है 15 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज इनवॉइस प्राइस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 40 बॉक्स बिक रहा था। तो 40 बॉक्स, एक एक बॉक्स में 50 बोतल, उसका इनवॉइस प्राइस 15 रुपया और उसके ऊपर इन्होंने बताया था 10%। तो 10% उसके ऊपर, ये हो गया फर्स्ट कमीशन। सेकंड कमीशन है 40 बॉक्स 50 बोतल इनटू एक्चुअल सेल प्राइस है तो 18 रुपया। तो इनवॉइस प्राइस से कितना ऊपर गया, 3 रुपया ऊपर गया। मतलब 3 रुपीज इंटू उसके ऊपर 25% का कमीशन। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वर्किंग में इसको फिर से बता देते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन जो है 40 बॉक्स का 50, एक एक बॉक्स में बोतल है, इनटू इनवॉइस प्राइस है 15 रुपया और उसके ऊपर 10%। ये हो गया ऑर्डिनरी कमीशन। मतलब 2000 इंटू 15 इंटू 10%, मतलब 3000 रुपया इधर में कमीशन आता है। और जब हम लोग स्पेशल कमीशन की बात करेंगे, जो एक्स्ट्रा कमीशन होगा, स्पेशल कमीशन, उसमें क्या करेंगे, 40 बॉक्स इंटू 50 बोतल इंटू एक्चुअल सेल प्राइस है 18 रुपया, इनवॉइस प्राइस है 15 रुपया, मतलब इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस 3 रुपया और उसका 25%। इन दोनों चीज को समअप करके मैंने वहां पे बताया है। इंटू 3 इंटू 25%, 1500 रुपया का स्पेशल कमीशन आता है। तो ये है 4500 टोटल कमीशन। ये मैंने 4500 यहाँ पे दे दिया। तो कुल मिलाकर 5500 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये इसका वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसका डिटेल्स भी दे दिया। अच्छा, आगे क्या है, ये 1125 का जो दिख रहा है आप लोग को, ये जो 1125 दिख रहा है, इसको अभी लेना नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक के लिए चलना है। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 3। calculations for unsold stock। पहले इन यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स में देखते हैं कितना यूनिट्स हमारे हाथ में है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हम लोगों को मालूम है कि 50 बॉक्स 50 बोतल का सेंड किया गया था। तो मतलब 50 बॉक्सेस इंटू 50 बॉटल्स, कुल मिलाकर 2500 बोतल
2500 बॉटल्स जो है सेंड किया गया था। लेस लॉस्ट या एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है यहां से ही देख लेते हैं। 5 बॉक्स एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो 5 बॉक्स इंटू 50 बोतल, दैट इज 250 बॉटल्स एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो 2250 बॉटल है, लेस सोल्ड, सेल कितना हुआ? तो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिख रहा है 40 बॉक्स 50 बोतल, मतलब 40 बॉक्स सेल हुआ है, तो सोल्ड हो रहा है 40 बॉक्स इंटू 50 बोतल, टोटल 2000 बोतल सेल हुआ है। तो सिर्फ 250 बॉटल्स अनसोल्ड है, जिसमें ये बता रहा है कि 1 बॉक्स बैडली पैकिंग और नॉर्मल लॉस हो जाता है। ठीक है, लेस नॉर्मल लॉस, पचास बोतल, एक बॉक्स का मतलब 50 बोतल, 1 × 50, तो वो भी हटा देंगे, तो 200 जो है अनसोल्ड है। अब इस अनसोल्ड का कैलकुलेशन करते समय हम लोग कुछ अजीब तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इन वैल्यू, नॉर्मली अभी तक जितना भी हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू किए ऐसा नहीं हुआ है, इसको करेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे इनवॉइस प्राइस और यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। इस मेथड को फॉलो करना ढंग से। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हम लोगों ने, अच्छा यहां पे यूनिट्स भी लिखना है। हम लोगों ने अभी अभी देखा 2500 बोतल सेंड किया गया था, उसका वैल्यू था आईपी में 37,500, आईपी में 37,500 और कॉस्ट में 37,500 से लोडिंग हटा देंगे 12,500, तो कॉस्ट में 25,000। उसके बाद ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने खर्चा किया था 5,000 रुपया फ्रेट एंड इंश्योरेंस में, तो लिखेंगे आईपी में भी 5,000 और यहां पे भी 5,000, तो टोटल 2,500 बोतल का खर्चा आया 42,500 आईपी में, कॉस्ट में है 30,000, लेस एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ था 5 बॉक्सेस, शायद देख लेते हैं एक बार। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 5 बॉक्सेस 50 बॉटल्स, तो
मतलब 250 बॉटल्स एबनॉर्मल लॉस हुआ था। उसका वैल्यू कितना था, कंसाइनमेंट अकाउंट में मिल रहा है, उसका वैल्यू था 4250। तो यहाँ पे है 4250 और उसका कॉस्ट कितना है, लोडिंग देख लेते हैं कितना था। एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग था 1250, तो कॉस्ट हो जाएगा 4250 माइनस 1250, तो 3000 का जो है कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। तो 2250 रुपया, 2250 बॉटल, ये हो गया 38,250 और ये हो गया 27,000। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट से पता चलेगा। ये रहा ड्यूटी और फ्रेट, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग 3000 रुपया था, तो उसको लिखते हैं 3000 रुपया, यहाँ पे भी 3000 रुपया, तो टोटल 2250 बॉटल का इनवॉइस प्राइस हुआ 41,250 और कॉस्ट प्राइस हो रहा है 30,000। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस है एक बॉक्स मतलब 50 बोतल लेस नॉर्मल लॉस। पचास बोतल नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता, तो उसे हटाना मत, जस्ट डैश करके निकल जाएंगे। तो 2200 बोतल का वैल्यूएशन आया 41,250 और 30,000। तो आईपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू 41,250, ये 2200 बोतल का है, इनटू अनसोल्ड स्टॉक कितना था 200 बोतल, ये रहा अनसोल्ड 200 बॉटल्स, तो 200 बॉटल का कितना आएगा 41,250 डिवाइड बाय 2200 इंटू 200, 3750 इसका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू आ गया आईपी में। और सीपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, सीपी है 30,000, 2200 बोतल का, तो 200 का कितना आएगा, तो 30,000 डिवाइड बाय 2200 इंटू 200, 2727, तो 2727 सीपी आ गया। तो स्टॉक रिजर्व ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू, जस्ट इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3750 माइनस 2727, दैट इज 1023 स्टॉक रिजर्व आ गया। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक 3750 और यहाँ पे लिखेंगे
to stock reserve to stock reserve 1023। तो यहां तक हम लोग इसको खत्म करते हैं। अब इसको क्लोज करना है। देख लेते हैं इसका टोटल 12,500 प्लस 4250 प्लस 36,000 प्लस 3750, तो 56,500 56,500 इधर देखते हैं 56,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। 37,500 प्लस 5,000 प्लस 1250 प्लस 3,000 प्लस 5500 प्लस 1023 माइनस 56,500 3227, ये रहा 3227। अब यहाँ पे एक चीज हम बताएंगे एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, 3227 ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद इन्होंने बताया कि 1/1/2025 को मतलब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2024 हमें बता दिया जा रहा है। तो इस साल मेरा ये तो खत्म हो गया। आने वाला साल मतलब अगले साल 2025 का जनवरी में सी ने ये डिस्काउंट कराया 20,000 का बिल जो था 19,800 में। तो इस केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। तो 200 रुपया का जो बिल डिस्काउंट हुआ वो पीएल में डेबिट करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे एक आर अकाउंट में ये जो बिल रिसीवेबल दिया गया था इसका हम लोग यहाँ पे 200 रुपया जो डिस्काउंट करा रहे हैं इसको लिखेंगे नोट एज्यूमिंग डिस्काउंट ऑन बिल of rupees 200 shall be debited to profit and loss अकाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट का यहाँ पे कंसाइनमेंट में और कुछ नहीं जाएगा। अगर ड्यूरिंग द पीरियड होता तो कंसाइनमेंट में हम लोग उसको डेबिट कर लेते। फिर आगे क्या बता रहा है 1/1/2025 में आगे बता रहा है। अच्छा, पहले इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग 31 दिसंबर 2024 का यहाँ पे पहले इसको क्लोज करेंगे। इसने बताया था इस जगह पे कि द एजेंट रेमिटेड
ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द नेट अमाउंट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे 36,000 माइनस 23,000, मतलब 13,000 का हम लोग बैंक लिखेंगे फाइनल रेमिटेंस। ठीक है, फाइनल रेमिटेंस।